our entire revenue went to zero. I have a family full of doctors, engineers. तो मैं तो black sheep of the family. Gyms को भी 80G का exemption मिलना चाहिए. An average, how many people actually visit the gym in a year? And the investor backed out at the last moment because adoption has been slow in India. Penetration is less than 2%. So fitness से भी बड़ा addiction कुछ नहीं है. By 2030, being fit is going to be as exclusive as owning a Rolex or a Lamborghini. From billion-dollar acquisitions to rewarding a billion-dollar steps, today we have Sanmati Pandey, who is the founder of GrowFitter, and we welcome him to Network Presence Founders Unfiltered. He's the one who will turn your sweat into rewards and cashbacks, and we are here to understand and to learn from his inspiring story. Hi Sanmati, welcome to Network Presence Founders Unfiltered. So you have been the founder for almost 8 years now, right? But Yes. कैसे बने यार founder? CA भी हो, CPA भी किया है, MBA भी किया है, and then like moving from those Excel sheets to term sheets. तो क्या story है GrowFitter की? You're right. You know, जैसे हर एक Indian parent पहले education is the most important thing. Right. And for me, my mom was principal in a school. Okay. तो हमारे घर में I have a family full of doctors, engineers. तो मैं तो black sheep of the family बोल सकते हैं क्योंकि मुझे 10th में अच्छे मार्क्स आए थे लेकिन I told my mom I want to take commerce. तो 15 दिन तक तो पहले मम्मी ने बात नहीं की थी. तो इट वाज इम्पोर्टेंट कि मतलब मम्मी को तो लगा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा. एक बीकॉम जो एक ऑनर्स रहता है बस. बट जो मम्मी बोलती थी मैंने उसका हमेशा उल्टा ही किया है. तो मॉम बोली तेरे से तो CA हो नहीं पाएगा. CA कर लिया. फिर द बेस्ट थिंग इज़ कि जब आपका फ्रेंड, मेरा कॉलेज का और स्कूल का जो बेस्ट फ्रेंड था, आप वो फर्स्ट आया ऑल ओवर इंडिया CA में. तो जब आपका दोस्त फेल होता है तो बुरा लगता है लेकिन जब वो फर्स्ट आता है तो और बुरा तो और ज़्यादा बुरा लगता है. तो इसलिए फिर MBA किया. एंड देन I got my job. I worked in Singapore. I was in corporate finance, treasury. But that is like the golden handcuffs. It's the every month you get your salary, and it doesn't let you take those risks. Right. But why fitness industry? Like because finance है fitness. I understand F दोनों में same है. But like you can like go through any industry. But why fitness specifically? तो तब क्या हो गया था कि it's an interesting story. One of my friends at a very early age was diagnosed with pre-diabetes. Okay. तो it was a shocker to all of us, and we went on the internet. हमने सर्च किया कि कुछ जिम जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ हेल्दी खा सकते हैं. तो तब we didn't get any good information on the internet. Okay. और तब हमने डिसाइड किया कि let's build something, let's build some technology where we can actually motivate users or reward users to live a healthy lifestyle. बट वो यार एग्जिट ईजी नहीं हुआ होगा ना. यू मैंशनड अबाउट लाइक गोल्डन हैंडकफ्स, राइट? बट एक जॉब छोड़ देना तो इट्स लाइक मतलब सडन डिसीजन था या थॉट दिया कि करेंगे ऐसा कुछ बिल्ड करेंगे एंड देन यू थॉट कि चलो अब मैं जॉब छोड़ता हूँ और फिर मैं इस प्रॉपर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आ जाऊँगा? नहीं, एब्सोल्युटली इट इज़ अ वेरी टफ थिंग बिकॉज प्रॉब्लम इज़ कि मेरी तो बहुत अच्छी जॉब थी जैसे मैंने बोला कि एंड एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहता है. Right. और सेकेंडली जैसे इंडियन फैमिली है टिपिकल. मम्मी बोली कि मैं अभी लोगों को क्या बोलूँगी कि मेरा बेटा जिम मेंबरशिप बेचता है. वापस से उल्टा किया जो हमने बोला था. एग्जैक्टली. तो एंड सेकेंडली क्या होता है कि आपके जो पियर्स हैं, क्योंकि मेरे जितने पियर्स थे दे वर डूइंग वेरी वेल. राइट. और कंपैरिजन्स आर ओडियस. लोग कंपेयर करते हैं लेकिन मैं इतना पैशनेट था उस चीज़ को लेके. एंड आई वाज very lucky कि my nephew, you must have seen Shark Tank also. इसमें Harshit, he is the co-founder and he is the brainchild behind the entire technology. Got it. So my co-founder, he's the CTO. वो पूरा tech हमारा completely in house है. तो in that way I got lucky. बट इट्स मोर ऑफ अ रिवॉर्डिंग प्लेटफॉर्म फॉर द ऑडियंस, राइट? आप फिटनेस में आओ, आपको मोटिवेशन की कंसिस्टेंटली ज़रूरत है तो आप ग्रो फिटर का प्लेटफॉर्म यूज़ करो और आपको कंटिन्यूसली रिवॉर्ड्स मिलेंगे, राइट? तो जब आपके फ्रेंड को प्री डायबिटिक उनके रिपोर्ट्स में आया तो डायरेक्टली आप इसी आइडिया पे जंप किया या कुछ स्टोरी है इसके पीछे भी? नहीं, तो तब हमने ये सोचा कि इसके लिए जिम लगाते हैं. लेकिन अभी प्रॉब्लम यही था व्हेन वी वेंट टू द जिम
कि हमने देखा बंदा पैसे तो भर देता है लेकिन कोई मोटिवेशन ही नहीं है जिम जाने को, सिर्फ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। एग्जैक्टली। और जैसे हमारे सीए में भी बोलते हैं उसको ना 80G होता है, जो आपको एक डोनेशन जब आप पे करते हो तो आपको एक एग्जाम्पशन मिलता है। तो हम तब बोलते थे कि जिम्स को भी 80G का एग्जाम्पशन मिलना चाहिए। तो देन वी थॉट कि इसको कैसे मोटिवेट करें, तो हमने एक्चुअली एक प्लान बनाया। हमारे पास पूरा डेटा सेट था अराउंड 1100 जिम्स का, और हमने देखा कि ऑन एन एवरेज हाउ मेनी पीपल एक्चुअली विजिट द जिम इन अ ईयर। ठीक है, कैन यू टेक अ गेस? इन 1100 gyms, मतलब इन अ ईयर एक बंदा कितने दिन जिम जाता है? लेट्स स्टार्ट विद यू। आप कितने दिन जाते हो एक हफ्ते में? मैं ऑलमोस्ट पूरे साल का काउंट करें तो 150 से 200 दिन। हाँ, बट एवरेज मुझे लगता है लोग जाते होंगे 80 से 100 दिन। सो यू विल बी सरप्राइज, even 5% of the people don't even go for more than 100 days in the gym. तो वो डेटा हमारे पास था, और हमने फिर एक प्लान लॉन्च किया जो एकदम ही मतलब माइंड ब्लोइंग प्लान था जिम्स के लिए। हमने ऐसा एक ऑफर निकाला ग्रोफिटर पे, यू कैन ज्वाइन एनी जिम एंड इफ़ यू वर्कआउट फॉर 250 days in a year। हमारे पास एक QR कोड था, जैसे मैंने बोला हर्षित ने पूरा इन हाउस टैग बनाया, तो जैसे ही पेटीएम का एक QR कोड है, हमारा एक QR कोड था जियो लोकेशन मैप। तो उनको डेली आना है और वो QR कोड स्कैन करना है, एंड यू हैव टू बी इन द जिम फॉर 30 minutes। इफ़ यू वर्कआउट फॉर 250 days in a year, योर एंटायर जिम मेंबरशिप इज़ फ्री। ओके, तो ये फर्स्ट थॉट था। ये फर्स्ट थॉट था। और इसके पहले मतलब लाइक जॉब इमीडिएटली छोड़ दी, मतलब डेफिनेटली वो नेफ्यू है बट वापस से कुछ कनेक्शन। हर्षित नाम है, राइट? सो उसको आप कैसे मिले? सो हर्षित डिड हिज मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम IIIT हैदराबाद। ओके, और उसको भी एक तगड़ी जॉब मिली थी इन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एंड ही वॉज ऑलरेडी मतलब ज्वाइन कर चुका था। लेकिन मैंने उसको कॉल किया और मैंने उसको बोला यार ऐसा ऐसा एक पेन पॉइंट है, एंड लेट्स बिल्ड समथिंग। दिस इज 2016? दिस इज 2017। ओके। तब जोमेटो एंड अदर ये जितने भी एग्रीगेटर वेबसाइट्स थे वो काफ़ी फेमस थे तभी। तो तब हमने स्टार्ट किया as an aggregator platform कि let's exactly and then we'll list them और उनको promote करेंगे। लेकिन very soon we found out कि gyms is not something like food or travel, कि बंदे को daily नहीं चाहिए रहता है। वो एक ही बार आएगा, एक बार join कर लिया, then he doesn't need to come again on a platform। तो इसीलिए फिर हमने उसको पूरा एक रिवॉर्ड इकोसिस्टम बनाया ताकि हम उसको मोटिवेट कर सके। तो अब वो जब वो आता है ग्रोफिटर प्लेटफॉर्म पे, उसको डेली यूज़ करना है क्योंकि उसको स्कैन करना है। और फिर हमने उसको और एक्साइटिंग बनाया। अगर आप 7 दिन आते हो हफ्ते में तो आपको एक फ्री मूवी टिकट मिलती है। आप 15 दिन आते हो एक महीने में, यू गेट डिस्काउंट्स ऑन योर ट्रैवल। सो देन वो पूरा रिवॉर्ड इकोसिस्टम। एंड gyms were very happy because the problem in the gyms was that as I told you, retention ratio was very low। मतलब फर्स्ट ईयर तो लोग जिम मेंबरशिप्स बेच देते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल रेट इज लेस देन, इट्स इन सिंगल डिजिट। तो जैसे ही हमने ये 100% कैशबैक निकाला तो द जिम्स बिजनेस शॉट अप। ओके, कितना % ग्रो हुआ? सो द बेस्ट थिंग इज कि जिम के लिए एक फिक्स्ड एक्सपेंस रहता है, राइट? उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, वो उनका रेंट है, ये सब फिक्स्ड है। तो अगर एक इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो भी आता है दैट इज टेक्निकली अ प्रॉफिट। ठीक है। तो जब हमने ये प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिम्स का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 25%। और आप कितना परसेंटेज लेते थे उसमें से? वी यूज्ड टू चार्ज बिटवीन 5 to 10% कमीशन। या सो बिफोर कोविड वी वर डूइंग जस्ट इन कमीशंस ऑलमोस्ट क्लोज टू $1 million। और बहुत सही चल रहा था, बहुत ही बिजनेस मॉडल सेट था। एक दो कंपेटिटर्स थे, दे ट्राई टू कॉपी अस बट दे फेल्ड मिजरेबली क्योंकि लोग घर से स्कैन करने लगे QR कोड। उन्होंने वो बिकॉज ये पूरा एक टेक प्ले था, राइट। सो मैं देखूँ 2017 से 2019 लाइक 2020 नहीं, जब तक रिवॉर्ड्स नहीं आए थे, राइट? रिवॉर्ड्स बाद में आए। हमने 2018 में रिवॉर्ड्स चालू कर दिए। बेसिकली लॉन्च द रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। ओके, गॉट इट। सो यार उसके लिए तो यू नीड हैवी फंड्स, राइट? क्योंकि आप फ्री में दे रहे हो इन दी एंड,
राइट? तो कुछ फंड रेजिंग किया, कुछ राउंड रेज किया, कैसे वो? नहीं, तो वी वर वेरी लकी इनिशियली, यू नो वी हैड a set of good angel investors. Okay. और you know in 2017 जैसे मैंने बोला, we had got a big angel funding round. It was almost close to 600K. तो स्टार्टिंग में ही रेस कर लिया था? तो वो स्टार्टिंग में हमने रेस कर लिया था. Okay. लेकिन as I said कि ये रिवॉर्ड इकोसिस्टम बहुत यूनिक था. Right. तो बहुत सारे D2C ब्रांड्स कब लॉन्च हो रहे थे. ड्यूटीसी ऑल्सो वो एकदम वो एरा था जब वे प्रोटीन, पीनट बटर और वीगन ये सब धीरे धीरे लॉन्च हो रहा था. तो उनके लिए तो ये दिस वाज द डायरेक्ट ऑडियंस दैट वी वर केटरिंग. इट्स लाइक अ गोल्ड माइन फॉर देम. एग्जैक्टली. और हम क्या करते थे, वी वर लाइक यार आपको ये नया प्रोडक्ट है, वी विल इंट्रोड्यूस यू टू द जिम्स, आप इसकी फ्री सैम्पलिंग करो. तो ये तो मतलब सोने पे सुहागा था, क्योंकि दे वर केटरिंग टू दैट यूजर. और हम डायरेक्टली उसको, क्योंकि प्रॉब्लम क्या, आप इंस्टाग्राम और गूगल पे आप पैसे तो खर्चे कर लेते हो, लेकिन यू डोंट गेट दैट कन्वर्जन. गॉट इट. बट व्हाट आई हैव सीन इन दिस इंडस्ट्री कि एंगेजमेंट बहुत डिफिकल्ट है. लाइक इन दी फिटनेस वर्ल्ड आई वुड से इतनी सारी कंपनीज हैं, राइट? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कंसिस्टेंसी एंड एंगेजमेंट में. तो डेफिनेटली रिवॉर्ड से वो एक सर्टेन पॉइंट पे सॉल्व हो रहा था, बट आपको एक सर्टेन अमाउंट निकालना भी है एज अ रेवेन्यू. आप कब तक फ्री में चीज़ें देते रहोगे, करेक्ट, टू दी कंज्यूमर? तो वो कैसे आपने फिगर आउट किया और कैसे एक रेवेन्यू मॉडल सेट किया कि यहाँ से मेरा एक रिकरिंग रेवेन्यू आता रहेगा और जो मैं रिवॉर्ड्स दे रहा हूँ उससे एक सर्टेन एंगेजमेंट रहेगा? हाँ, तो इनिशियली जैसे मैंने आपको बोला कि हम तो डायरेक्टली एक कमिशन लेते थे जिम से. तो तब तक तो हमारा बिजनेस बढ़िया था, बिजनेस मॉडल. फिर लॉकडाउन आ गया एंड ऑल ऑफ अ सडन आवर एंटायर रेवेन्यू वेंट टू जीरो. So this is the beauty of being an entrepreneur. Right. सब वो ग्लैमर की बात करते हैं, बड़ी बड़ी फंडिंग की बात करते हैं, right. लेकिन there is a very dark side to entrepreneurship also. Right. There are times when you are on the verge of bankruptcy. हमारे साथ भी ऐसा 2 या 3 बार हुआ. मुझे अभी भी याद है, हमारे अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए थे एंड द इन्वेस्टर बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट. मुझे अभी भी याद है, मैंने उसको बोल दिया था कि सर मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, और वो बोला तो मुझे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है. तो फ्रॉम देयर देन उसके बाद ही आप शार्क टैंक पे फीचर हुए या नहीं? तो वो बेसिकली 2020 में लॉकडाउन आया एंड वी वर वेरी लकी अगेन, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ हसलर. तब मैंने ऑनलाइन एक कोरिया का एक्सेलरेटर प्रोग्राम था. इट्स कॉल्ड द के स्टार्टअप. एंड तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था. अब ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने हमारा जूम कॉल लिया एंड दे सेड यू आर सिलेक्टेड and they will also give us $50,000 and they will invite us to Korea to stay for 4 months. Oh wow. Right in the middle of pandemic. मतलब बंदा दिल्ली नहीं जा पा रहा है बंदा घर से बाहर नहीं निकल रहा है and they want us to fly. और तब तक तो मैंने मतलब कोरिया किधर है मुझे मालूम नहीं. ये फर्स्ट वेव की बात है, अगस्त 2020. राइट. मतलब मुझे अभी भी याद है, हम लोग वीज़ा लेने गए थे तो वो एम्बेसी वाला क्या फूक क्या है, हम एक लॉन्ग टर्म वीज़ा तो इशू ही नहीं कर रहे, और तेरे को अगर वीज़ा दे भी दिया तो वो आपको वहाँ से डिपोर्ट कर देंगे. लेकिन where there is a will there is a way. They basically sent us a letter from Ministry of Justice and एक ही प्लेन था जो सैमसंग एम्प्लॉयज़ के लिए था. we got into that plane and बंदे यहाँ पे घर से निकल नहीं रहे हैं. एंड दैट टाइम वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स था. सो 4 months we stayed in South Korea. The government was very supportive. उन्होंने हमारे लिए पूरा एक co-working space allot किया था. We met a lot of big conglomerates. It's a very developed market. They have so many parks. They have cycling areas. तो तब हमने सोचा कि यार अभी तो हम सिर्फ जिम्स के लिए कर रहे थे, लेकिन what about the entire world or the entire audience. वो तो क्या करते हैं, वो वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं. तो तब हमने फिर इसको पिवट किया और हमने फिर बोला कि अब ये दिस इज ओपन फॉर ऑल एंड वेदर यू वॉक, रन, साइकिल और इवन इफ यू टेक अ हेल्थ क्विज.
हम रिवॉर्ड इकोसिस्टम सबके लिए खोल देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू रिवॉर्ड इकोसिस्टम डेफिनेटली समझ में आता है इंडिया में एक लॉजिस्टिक कॉस्ट है, राइट? कि आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से आईफोन जीतता हूँ तो आपको, और मैं बैठा हूँ मे भी मुजफ्फरनगर में यूपी में, तो मुझे आईफोन चाहिए तो आपको भेजना पड़ेगा और एक देयर विल बी अ सर्टेन कॉस्ट। बट जब सबके लिए आप ओपन कर रहे हो अक्रॉस द वर्ल्ड, तो व्हाट काइंड ऑफ रिवॉर्ड यू आर गिविंग टू द अदर कंट्रीज? लाइक नहीं, तो पहले तो हमने सिर्फ इंडिया में लॉन्च किया। हाँ वही। एंड जैसे हमने पहले जब साउथ कोरिया में भी एक डेमो मॉडल किया था, तो तब हमने वहाँ के लोकल ब्रांड्स के साथ टाई अप किया था। ओके। एंड वी बेसिकली गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। तो वहाँ पे क्या ना, अमेरिकानो कॉफ़ी बहुत चलती है, तो वहाँ पे हमने जितने कॉफ़ी शॉप्स थे, यस, और बहुत सारे वहाँ पे वीगन स्टोर्स थे, तो हमने देखा कि, और इनफैक्ट हमने कोरियन लैंग्वेज में लॉन्च किया था, तो उसमें हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। सो वी सेड कि तब द कोरियन गवर्नमेंट वाज रेडी टू फंड अस मोर एंड दे सेड दैट यू कंटिन्यू हियर, बट बीइंग एन इंडियन, और यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज यू हैव 1.5 बिलियन पीपल। तो फिर हम यहाँ पे आए, और तभी जिस शार्क टैंक का सीज़न 1 उन्होंने लॉन्च किया था, मुझे अभी भी याद है, वो लिंक्डइन पे उन्होंने एक छोटी सी ऐड चलाई थी, तब आई डोंट थिंक मैनी पीपल न्यू अबाउट इट। तब मैंने अप्लाई किया। अगेन इट वाज वेरी टीडियस, बिकॉज सबको लगता है कि बस आपको एक आइडिया है, आप शार्क टैंक चले जाओगे और पिच करोगे, ऐसा नहीं होता है। उसके बहुत सारे राउंड्स होते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर रियलिटी शो। इन शार्क टैंक सीजन 1 काफ़ी अच्छा व्यूअरशिप पे भी गया था, बिकॉज लॉकडाउन था, लोगों के पास चीज़ें, उनको नई चीज़ें चाहिए थी देखने के लिए भी। व्यूअरशिप, इफ़ यू सी रील्स उस टाइम पे लॉन्च हुआ, मैक्सिमम व्यूअरशिप यूट्यूब से लेकर ऑल द सोशल मीडिया चैनल्स, प्लेटफॉर्म जितने भी थे वो सब भी फटे। तो एक आई थिंक बोल सकते कि एक लक फैक्टर भी था साथ में। नो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और हम सब ने शार्क टैंक यूएस बचपन से देखा है। करेक्ट। मुझे अभी भी याद है, जब भी बंदे कोई पिच करने आते थे, कुछ गलती कर देते थे, तो मैं भी मिरर के सामने खड़े रह के पिच करता था कि यार मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा। तो तब व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी केम इन, सर्टनली पहले आपको एक 4 घंटे का फॉर्म रहता है, आपको पूरी जन्म कुंडली उसमें लिखनी रहती है। फिर जब आप सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं, फिर आपको अगेन एक बड़ा फॉर्म रहता है, उसमें फिर आपको एक वीडियो बना के भेजनी पड़ती है। देन देयर इज़ राउंड 1 विच इज़ यू एक्चुअली हमारा वेस्टर्न होटल बॉम्बे में पहला ऑडिशन था। वहाँ पे सोनी का स्टाफ दे एक्ट एज जजेस, वहाँ पे आप पिच करते हो। सो दैट्स लाइक योर first audition. Then if you get selected in all these 3 stages, then you actually go and फिर आपको फिल्म स्टूडियो में 3 दिन बुलाते हैं, और वहाँ पे KBC चल रहा था, कपिल शर्मा का शो चल रहा था एंड 3 दिन वो आपको, बट एज आई टोल्ड यू कि वो फर्स्ट टाइम था, हमें तो जजेस के नाम भी पता नहीं थे। इनफैक्ट मेरा तो काफ़ी वायरल भी हो गया था, मैंने अनुपम को अमन और अमन को अनुपम बोल दिया था, और अमन ने मुझे कन्फ्यूज पम बोला था। मुझे याद है आपके एपिसोड का एक पार्ट था कि यार मैं मेरी एप्पल वॉच को, अनुपम बोलता है कि मैं मेरी एप्पल वॉच को कुत्ते को पहना दूँ और वो भागता रहेगा, रिवॉर्ड मुझे आते रहेंगे। आई थिंक वो चीज़, बट तो उसको वो हर्षित ने केटर किया था कि हमारे इसमें एक मोशन सेंसिंग एल्गोरिदम है, तो एक ह्यूमन का वॉक और एक कुत्ते का वॉक थोड़ा अलग होता है, और वो सेंस कर लेता है। बट इट वाज अमेजिंग। मतलब मुझे अभी भी याद है कि इतनी लाइट्स थी वहाँ पे, मुझे सामने कोई जजेस दिख ही नहीं रहे थे मैं अंधेरे में पिच कर रहा था। बट रेवेन्यू जंप कितना बड़ा हुआ? लाइक व्हेन यू आपका जब आया टीवी पर आया जब आपका एपिसोड, तो कितना % फ़र्क पड़ा इन द टर्म्स ऑफ डाउनलोड्स, इन द टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड एंड एवरीथिंग? क्या आपको और D2C ब्रांड्स रीच आउट करने लग गए कि मेरे ब्रांड्स को, मेरे प्रोडक्ट को भी आप लिस्ट करो, और कितना फ़र्क आया ओवरऑल? नहीं, सर्टनली वो जब एयर होता है, लेकिन उसके पहले आई वांटेड टू शेयर एन इंटरेस्टिंग थिंग। ये मैंने पहले कभी किसी को बोला भी नहीं था, तो मैं भी ये एम आई द लकी वन? नहीं, मैं भी ये फर्स्ट टाइम। तो क्या हो गया था कि हमारा शूट हो गया था, राइट, एंड वो सोनी के ये रहते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका टेलीकास्ट होने वाला है। तो देयर वर अराउंड 30 एपिसोड्स एंड 28 मतलब उन्होंने पहले बोला था कि आपका ये एक एपिसोड में आने वाला है, और उसका एक ट्रेलर भी आ गया था, और हमने पूरे मतलब पूरे गांव में कर दिया था कि अरे हमारा आ रहा है, और उस दिन वो नहीं आया। एंड उसके 15 दिन तक
there was complete silence, from the Sony team. And they were like, we are not sure whether आपका air होने वाला है कि नहीं. और क्या रीज़न था उसका? अब पता नहीं, कभी वो बोले कि आपने कुछ, आपने अनुपम को अमन बोल दिया और अमन को अनुपम, क्या वो रीज़न था? क्या रीज़न था, वो उन्होंने एग्जैक्टली बताया नहीं. राइट. एंड मुझे वो 15 दिन अभी भी याद है. मैं एकदम आई वॉज काइंड ऑफ डिप्रेशन बिकॉज सब बंदे पूछ रहे, घर वाले पूछ रहे, भाई कब आएगा कब आएगा. और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, वहाँ पे लोगों को, आई मीन व्हाट दे मस्ट बी गोइंग थ्रू जब उनके सीन्स कट हो जाते हैं, एडिट हो जाते हैं. सो तब लकीली एक्चुअली 30 एपिसोड्स ही होने वाले थे. बट बिकॉज द शो गॉट एन अमेजिंग TRP, दे डिसाइडेड टू एक्सटेंड 5 more episodes. एंड लकीली तब वो कपिल शर्मा का शो में सब जजेस आए थे और तब इनकी TRP एकदम पीक पे थी. तो वो बोलते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. और तभी हमारा नेक्स्ट डे हमारा एपिसोड आया. एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. फट गया. एंड एज आई टोल्ड यू, उसी दिन हमारे 1 लाख ऐप डाउनलोड्स हो गए. एक दिन में. और दिस इज विदाउट बूस्टिंग दैट पर्टिकुलर वो एपिसोड मुझे अभी भी याद है. वो एपिसोड, और हमारा ऐसा था कि 4 जजेस वर आउट एंड वो एक ब्रेक आया था. तब सोनी टीवी पे आता था, अभी नहीं आता है, अभी सिर्फ सोनी लिव पे आता है. तो तब सब ब्रेक में मुझे इतने कॉल कर रहे, भाई फंडिंग मिली कि नहीं मिली कि नहीं. इट वाज क्योंकि एक नया शो था, एक नया कॉन्सेप्ट था. एंड बहुत मज़ा आया था. बहुत लोगों ने फ़ोन किया, यार तूने ऐसे पिच करना चाहिए था. फिर मेरी एक कज़न है, वो थोड़ा गाँव में रहती है. वो बोली हमारे पूरे गाँव ने ये शो देखा. और फिर फ्रेंड्स जो मतलब लॉन्ग लॉस्ट जो स्पेन में है, कोई कनाडा में, सब फ़ोन. सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. 2-3 दिन मैं एयरपोर्ट पे गया, लोगों ने लाउंज वाउंज में फोटो वोटो भी खींचे. तो जिन लोगों ने आपको ज्ञान दिया कि इस तरीके से पिच करना चाहिए था, तो उनका फिर आपने बाद में फ़ोन उठाया? फिर कुछ दोस्तों ने बोला, यार तूने मेरा आइडिया कॉपी किया, मुझे रॉयल्टी चाहिए. हाँ, वो बोले यार 2 साल पहले हमको भी आइडिया आया था, हम भी ये करने वाले थे. तो तो आपने बोला नहीं, आइडियाज तो रोज सुबह निकलते हैं. मैंने बोला भाई ठीक है, अगला स्टार्टअप जब चालू करूँगा तो तुमको पूछ के करूँगा. तो वो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस सर्टनली. उससे हमारी ब्रांड विजिबिलिटी, क्योंकि हमारा एक B2C प्लेटफॉर्म था, वो बहुत हमको बूस्ट हुआ. और उससे अभी इनफैक्ट उससे वही है कि द फर्स्ट मिलियन इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट. सो वी वर वेरी फास्ट एबल टू रीच आवर मिलियन डाउनलोड्स. तो कितने डाउनलोड्स पहले थे शार्क टैंक के एपिसोड एयर होने से पहले, और उसके बाद? तो पहले जैसे मैंने बोला कि पहले तो हमारा वो पूरा जिम बिजनेस था. नहीं, बट सर्टेन नंबर्स. तो तब हमारे कुछ ज़्यादा नहीं थे, 30-40 हज़ार डाउनलोड ही थे. और उसके बाद सीधा 1 मिलियन एक दिन में हुआ? नहीं, 1 मिलियन नहीं, 100,000 डाउनलोड्स हुआ. तो सीधा हम 500,000 तक, मतलब ऑलमोस्ट विद इन 2 months 3 months. तो इट ऑलमोस्ट 10x. एंड हमारा एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी था, तो वो भी बूस्ट हुआ. और मेन था कि हमारा पूरा जो रिवॉर्ड इकोसिस्टम पहले था कि ब्रांड्स को फॉलो अप करो, फ़ोन करो, ये करो वो करो. अब ऐसा हो गया था कि सब ब्रांड्स ही आपको फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हमको लिस्ट करना है. सो दैट वाज ए बिग बूस्ट. एयर होने के बाद और VCs ने रीच आउट किया कि हम लोग भी फंडिंग देने के लिए रेडी हैं. एब्सोल्युटली. तो क्या हो जाता है ना कि आपको वैसे भी एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, व्हेनेवर यू गो एंड पिच. तो जब आपका ऑलरेडी एक टीवी पे शो आ गया है एंड हमारा एक 10 minutes का तो जब भी मैं VCs को पिच करता था, वो एक 30 second 1 minute की क्लिप दिखाता था. एंड सडनली इट हेल्प्स यू अ लॉट. एंड वी हैड ऑल्सो गॉट अ डील फ्रॉम अमन गुप्ता. तो वो भी एक चेरी ऑन द केक था. सो द कन्वर्जन हमको बहुत फ़र्क पड़ा. इनफैक्ट वी वेंट एंड रेज्ड अ प्रीटी डिसेंट राउंड पोस्ट शार्क टैंक ऑल्सो. वी रेज्ड ऑलमोस्ट $2 million. तो दैट रियली हेल्प्ड अस टू कैटअपल्ट आवर ग्रोथ. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड कि क्या शार्क टैंक थोड़ा रिग्ड भी है? लाइक दिस व्हाट आई हैव हर्ड. तो इट्स नॉट रिग्ड टेक्निकली, बट ये है कि लोगों को लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है, या लोगों को लगता है कि यार वहाँ पे रीटेक्स होते होंगे. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. वहाँ पे आपको एक ही चांस मिलता है. तो अगर उधर आपने गुफ अप कर दिया तो गुफ अप कर दिया. एंड एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है, अराउंड 60,000 स्टार्टअप्स अप्लाई इन शार्क टैंक. आउट ऑफ दैट only 200 make it in the final round. And out of 200 only 60-65 startups get ads.
नो गेट एड। अच्छा, गेट तो ऐसा नहीं है कि आपने पिच किया, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने पिच किया लेकिन दे डिड नॉट गेट एड। तो इनफैक्ट आपने अभी यूट्यूब पे आते हैं अनसीन एपिसोड्स ऑफ शार्क टैंक। सो टेक्निकली यू आर इन द टॉप, जैसे IITians और इनफैक्ट मेरा एक काफ़ी डायलॉग भी वायरल हुआ था, मैंने तब बोल दिया था तब वो CA का कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, पीयूष ने कुछ बोल दिया था CA से बच के रहना था, तब मैंने बोल दिया था IIT बहुत हो गए, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की बारी है। तो वो रील काफ़ी मेरी बट जो स्टार्टअप्स आज अप्लाई कर रहे हैं फॉर शार्क टैंक, डू यू थिंक कि उनको भी उतना ही वैल्यू मिलेगा जितना सीज़न 1 या सीज़न 2 में लोगों को मिला है? नहीं, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि इट इज़ बीन कमोडिटाइज। जैसे आपको याद है कि इंडियन आइडल आज भी हमें वो अभिजीत सावंत, वो राहुल वैद्य, आई थिंक यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड सिंगर। तो वो जो पहला सीज़न या ये पहले 2 सीज़न का जो जो किक होती है वो फिर धीरे धीरे और अभी तो ऐसा है कि दे आर नॉट इवन एयरिंग इट ऑन TV। अच्छा, ओके, ये मुझे नहीं पता। हाँ, अभी सिर्फ सोनी लिव पे ही आता है, ऐप पे आता है, बिकॉज दे वांटेड टू बूस्ट ऑन दी ऐप। तो इसलिए अभी काफ़ी, और पहले सीजन में काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई, थैंक्स टू आई रिमेम्बर। तो क्या था कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। But as I told you कि fitness as a space is very challenging. And interestingly, after Shark Tank, we got invited for another global TV show, and it's now aired on Amazon Prime in US and UK. It's called Kryptonites. Kryptonites. Yes. तो but how is it linked to GrowFitter? So हमारा एक Web3 बिजनेस भी है। Okay, तो उसमें भी हमने अप्लाई किया था, और उधर भी उन्होंने हमारी पूरी फिटनेस की जर्नी हमने दिखाई थी, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड एंड दैट वी केम ऑन शार्क टैंक। तो उसमें भी हमको बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स आया, बिकॉज बीइंग एड ऑन Amazon Prime, that too in US and UK. So we want to now launch in Dubai and other countries, so that really helped us. Nice. And interestingly, one more aspect is I also got the chance to meet the OG of Shark Tank in US, Kevin O'Leary. I'm sure आप जानते हैं, so he's one of the big judges in Shark Tank US. So recently I met him. I showed him our Shark Tank India episode. ऐप डाउनलोड करवाया उनसे GrowFitter का या कुछ रिवॉर्ड्स भेजे उनको? उनकी वॉच बहुत इंटरेस्टिंग है। he is famous for wearing our 250,000 300,000 watch. And he wears watches in both the hands. And what's the reason? पूछा नहीं कभी? नहीं, इतना पूछा नहीं, लेकिन उसने ये बोला कि yes, you should apply in Shark Tank US. So you never know. And I think the way diabetes and obesity is growing in US, of course, they need rewarding platform like you. Absolutely. US is a very big market, and in terms of it's a developed market, वहाँ पे fitness penetration. अभी इंडिया में problem यही है कि penetration is very low. Right. We are like the 12th least healthiest countries in the world. I think so, in India it's like food is love and love is food. I agree. Right? But you mentioned about Web3, right? So मुझे ये समझना है कि फिटनेस और हेल्थ को आप टोकनाइजेशन एंड ब्लॉकचेन से कैसे रिलेट कर रहे हो? तो एक कंपनी है, it's called Sweatcoin. Okay. If you have heard of Sweatcoin, it's a very big company now. Okay. It's now got more than 50 million app downloads. It's very similar to our app, where they basically reward you with the rewards for taking steps. तो उन्होंने basically उनका टोकन लॉन्च किया. Okay. So now you basically get sweat tokens. Okay. And that can be they listed it on the crypto exchanges. So now you are actually getting money for walking. So काफ़ी बड़ा रेज था. And there was another company called StepIn. उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट किया था Web3 में. They basically sold digital shoes. What is digital shoe? मतलब वो चला बहुत, लेकिन एंड में it turned out to be kind of a Ponzi, because वो 1 लाख के डिजिटल जूते बेचते थे. एक्चुअल जूते नहीं, आपको ऐप डाउनलोड करना है और उसके अंदर आपको बेसिकली एक जूता खरीदना है. Okay. So it's like a digital shoe. लेकिन वो shoe was charge at $500 to $1,000. And फिर आप जितने steps लोगे, आपको basically again आपको उसके crypto tokens मिलते हैं. And that can be sold and you can convert to actual rupee. So people were actually making 5,000 10,000 rupees a day
you know, on that app. सो अभी जैसे ग्रो फिटर की बात करें, इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेटेड अभी नहीं है, राइट? सो बट आज क्या मैं कंटिन्यूसली जब वॉकिंग कर रहा हूँ या एक सर्टेन स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ, तो क्या मुझे जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उसको मैं मोनेटाइज करके जब लॉन्ग टर्म देखूँ तो क्या बिटकॉइन खरीद सकता हूँ? तो वही प्लान है बेसिकली, हम हमारा टोकन लॉन्च कर सकते हैं एंड अगेन यू नो तो यूज़र जो अभी पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा है, राइट, यू नो हमारे ग्रो फिटर ऐप, तो उसको कन्वर्ट कर तो देंगे, वो उसको टोकन में कन्वर्ट कर सकता है एंड देन यू कैन मोनेटाइज दैट टोकन. तो वो प्लान है. बट क्या वो इंडिया के, So not just India, that is the beauty of you know Web3. Web3 can be done anywhere globally. So even if he is not in India, you know, अगर मुझे अभी जैसे हमने बोला कि we are planning to launch Dubai, Singapore, US. So then the Web3 economy will be far more easier for us to capture the global market. Okay, nice. Because जहाँ पे हम rewards नहीं दे सकते, Right. वहाँ पे हम उनको हमारे you know GFIT tokens देंगे. Right. सो इनफैक्ट यू नो मैं एक यू नो मैं ट्विटर पे भी एक्टिव हूँ, तो वहाँ पे भी यू नो हमारा एक लाइव कैंपेन था, तो वी हैड अ लॉट ऑफ यूजर्स फ्रॉम अफ्रीका एंड नॉट मैनी पीपल नो अफ्रीका इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग यू नो डेवलपिंग इकोनॉमी. तो बहुत लोगों ने बोला कि सर आप ग्रो फिटर अफ्रीका में लॉन्च करो एंड यू गिव अस टोकन्स. तो वहाँ पे इनफैक्ट यू नो बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज आर डूइंग मच you know much bigger adoption in underdeveloped countries also, क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप नहीं है. Nice. So this we are exploring, you know, keeping our core business here, but certainly कोई opportunities आती है, so we are But always. हमने ना सनमति हमने रिवॉर्ड्स की बात करी. रिवॉर्ड्स इज डायरेक्टली लिंक टू ह्यूमन साइकोलॉजी, That's राइट? तो आपका बैकग्राउंड है फिटनेस का एंड फाइनेंस का, राइट? That's right. तो कैसे दोनों चीज़ों को आप कोरिलेट करते हो कि हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी इज लिंक्ड विथ फिटनेस एंड फाइनेंस डायरेक्टली? No, so as I told you, you know, the biggest motivation is, you know, green is the color of dollar and green is the color of motivation. Right. और हमने ये देखा है इसलिए आपने कि ग्रीन पहना है. That's right. नहीं, so ये हमने पूरा स्टडी किया है कि स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया हमें फ्री का सब बहुत अच्छा लगता है. Right. आप कुछ भी देते, ज़ारा पे अगर 90% डिस्काउंट है तो आप देखोगे पूरी लाइन लगी रहती है. या फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में हमने देखा है कि यू नो वो जिलेटो पे यू नो 10 रुपये में आइसक्रीम मिलती है. तो वी आर ऑलवेज, एंड नॉट जस्ट इंडिया, आई थिंक मैं जहाँ भी गया हूँ, you know, people love you know free stuff. Freebies. Now the good part was there are a lot of brands that launch a lot of new products. लेकिन अब उनको you know free sampling के ज़्यादा platforms हैं नहीं. जब हमने चालू किया था, you know, we had 35 competitors. But unfortunately, you know, the markets, especially the startup ecosystem, we had a long winter. And in fact, this year, almost 26,000 startups have shut down. बट क्या फिटनेस इंडस्ट्री डेड है अकॉर्डिंग टू यू? It's going through a very rough tough patch, because as I told you, 35 players थे और अभी गिनती के 2 या 3 players ही survive कर रहे हैं, because adoption has been slow in India. अभी भी लोगों को you know वही, हम भले ही healthy food के बारे में बात करें, gym अभी भी you know penetration is less than 2%. We are the diabetic capital of the world. आज भी हमको you know वड़ा पाव, पाव भाजी, समोसा वही खाना है. हम उसको भले ही you know थोड़ा बेक कर देंगे, उसको थोड़ा लेस फ्राई कर देंगे. सो दैट इज़ द हार्ड रियलिटी. एंड उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है. आज अगर मुझे बॉम्बे में साइकिल चलानी है, तो कहाँ साइकिल चलाओ, मुझे कोई गाड़ी उड़ा के चली जाएगी. गुड़गांव में तो वो बाइक चला रहे थे तो वो पीछे से थार आके उनकी बाइक्स तोड़ दी. तो इन टर्म्स ऑफ यू नो वो अभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है. तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम. इफ यू सी अदर कंट्रीज, you know, they have a specific you know cycling route. आप सिंगापुर चले जाओ, in fact you know मैंने साउथ कोरिया में थे, you know they had so many parks. You know pollution levels आज तो हम देख ही रहे हैं, you know. AQI का न्यूज़ हम रोज देखते हैं. Exactly. So why do you think fitness is so important in someone's life? Yeah, it's a very interesting question. I think people respect you when you are in shape. You know, I mean, the world doesn't see your intention. Right. You know, they see your execution. Okay. And you know, when you are in shape,
You know, people think that if you can take care of yourself, you can take care of other things. You know, you can take care of business, you can take care of responsibilities, even relationships. And you know, एक interesting fact आया अभी that by 2030, you know, being fit is going to be as exclusive as owning a Rolex or a Lamborghini. Oh. एंड यू नो आप बाकी सब कुछ किसी और से करवा सकते हो, आप खाना किसी और से बनवा सकते हो, आप ड्राइव किसी और से करा सकते हो, बट यू नो आपकी बॉडी आपको खुद को ही बनानी है, कोई और आपके लिए जिम में नहीं जा सकता है. सो आई थिंक एंड यू नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी, यू नो इट्स अबाउट डिसिप्लिन. यू नो जैसे हमने देखा है, यू नो अक्षय कुमार रोज़ यू नो सुबह 5:30 बजे उठता है एंड यू नो ही वर्क्स आउट. अभी ब्रायन जॉनसन का मैं यू नो एक इंटरेस्टिंग वीडियो देख रहा था, वो बोल रहा है कि जस्ट लाइक जेंस you know who don't eat after you know 6, तो उसने बोला है कि you actually should not eat 3 hours before sleep, and you should monitor your resting heart rate. And in fact he also says that you should not have you know tea or coffee you know post evening, because again you know that elevates your heart rate. तो आप जितना lower अपना heart rate रखोगे सोने से पहले, in fact 1 घंटे पहले वो बोल रहा है you should not even have screen time. So that is the secret you know for healthy living. If you can have a lower heart rate you know before sleeping or 3 hours, इसलिए उसने वो red light पहनता है, and you know वो he has that you know red light again you know emits you know lower heart rate. That basically you know helps you to live longer. आई थिंक उसका साइंटिफिक साइड देखें तो आपका हार्ट रेट जितना कम होता है उतना ही कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है, राइट? सो आई थिंक माई हार्ट रेट इज समवेयर अराउंड 51-52, बट आई एम ट्राइंग टू यू नो गेट इट टू अराउंड 45-40. सबसे कम हार्ट रेट जो एथलीट्स में रहा है वो सबसे ज़्यादा माइकल फिलिप्स का रहा है. आई थिंक इज समवेयर अराउंड 34 और 35. इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक वो भी एक रीज़न है कि ब्रायन जॉनसन इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है. और जो हमने जैन्स की बात करी 6 बजे के बाद, तो यू नो वो इंडियन ट्रेडिशन में था ही. हम आयुर्वेदा की बात करेंगे, हम आज ब्रायन जॉनसन को सुन रहे हैं, राइट? बट इफ़ वी गो टू आयुर्वेदिक ट्रेडिशंस, हमारा स्टार्टिंग से ही रहा है कि आप ट्राई करो कि सूर्यास्त से पहले खा लो. आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ले लो, यू नो ये जितने भी यू नो जेंजी वर्ड्स है, यू नो हमारे तो उपवास पहले ही होते थे. यू नो हमारे तो 10 दिन यू नो पर्यूषण होता है, जहाँ पे वी डोंट इवन वी हैव फूड वंस अ डे. आई थिंक इवन इन यू नो मुस्लिम्स यू नो दे हैव रमज़ान 1 महीने का, they don't have anything, you know even in हमारे 9 दिन जब दशहरा के रहते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन. एंड अभी वही है कि वेस्ट अगर कुछ you know scientifically prove कर देता है, then you know everybody follows. Right. We will start just you know adapting whatever we have to follow everything blindly, you know. Right. But okay, हमने fitness की बात करी, and of course if you are the founder of GrowFitter or if you are running a fitness or a health company, you need to be fit. आप पेट लेके नहीं जा सकते कि भाई आपको मैं पतला करूंगा, भैया पहले तू पतला हो जाए. इट्स लाइक यू नो आप वो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं आपको बाल बढ़ाने, और वो डॉक्टर गंजा है. तो certainly you know I also have you know a fitness regime. I don't drink, I don't smoke. कभी नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया. कभी ट्राई भी नहीं किया? मैं चाय भी नहीं पीता हूँ. तो खैर वो तो घर वाले बोलते थे चाय पीने से काला होता है तो तब से चाय पीना ही छोड़ दिया. एंड यू नो आई ट्राई टू गो टू द जिम यू नो 3 to 4 times a week. But do you play any sports? No, I'm a hardcore लोहा उठाने वाला बंदा हूँ. मेरे को जिम में जाके यू नो हैवी वर्कआउट करने को अच्छा लगता है. आई हैव नेवर इवन डन कार्डियो इन माई लाइफ. मैं कभी ट्रेडमिल पे भी नहीं भागा. बट आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब से अभी इंडिया में ट्रेंड्स आ रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ लोग काफ़ी मूव हो रहे हैं, right? So they want to have a mix of workouts and strength training. Absolutely. In fact, you know, marathon is now such a big culture. अभी walkathon आ गया है. Walkathon आ गया है. तो कुछ भी करो, you know, as I said कि हमारे ऐप पे भी है ना, हमारे बहुत सारे जो customers है, users है, they came in for the rewards. But now they basically, you know, want to do 10,000 steps a day, or they want to do a 30-minute walk. So we get a lot of customers कि यार अभी हमको टिक चाहिए. So fitness से भी बड़ा एडिक्शन कुछ नहीं है. हम बाकी एडिक्शंस की बात करते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बट अगर वंस यू आर इनटू फिटनेस एंड वंस यू स्टार्ट रनिंग और वंस यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम, मैं जब 2 दिन नहीं जाता हूँ
तो यू नो आई ऑल्सो फील इट्स लाइक ब्रशिंग योर टीथ. आप जैसे ब्रश करते हो वैसे ही वर्कआउट करना आपको ज़रूरी है. Absolutely. आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मुझे टाइम नहीं मिला. That's right. हम ये नहीं बोलते ना कि यार आज मैं नहाया नहीं बिकॉज टाइम नहीं मिला, या मैंने ब्रश नहीं किया बिकॉज टाइम नहीं मिला. आप रोज़ करते हो, राइट? सो फिटनेस भी उसी का पार्ट है, राइट? सो ये आई थिंक कहीं ना कहीं मैं भी रिलेट करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ काइंड ऑफ एक फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है. Absolutely, and interestingly, you know, we are the diabetes capital of the world. Right. But you know, most of the users have type 2 diabetes. Correct. It's not type 1 diabetes. Type 2 diabetes can be reversed. Right. And one of the most, you know, simple solutions to reverse is to have an active and healthy lifestyle. Right. So मुझे लगता है कि आप कुछ भी करो. मतलब आप वॉकिंग करो, आप साइकिलिंग करो, आप टेनिस खेलो, आप स्विमिंग करो. You have to do something, you know, on the active side. And that's why, you know, we are basically rewarding users कि आप, you know, walk करो, cycle करो, run करो. In fact, even if you take a health quiz, because if you are, आपको पता है आपको क्या खाना है, आपको, you know, how do you have to basically, you know how to count your calories. Because इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि लोगों को पता ही नहीं है कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी. करेक्ट. अभी आप, you know, एक चिप्स का पैकेट खा लेते हो, आप पूरा दिन भूखे रहो. और आपने अगर स्नैक्स में नट्स या आपने यू नो एक पैकेट चिप्स का खा लिया, सो दैट्स 500 कैलोरीज. मतलब आपकी दिन की अगर 1500 या 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, आपने 2 चिप्स के पैकेट खा लिए तो आपका पूरा दिन का रिक्वायरमेंट खत्म हो गया. सो द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टू ईट फूड्स which you know are less in calories and which are more filling. So आप आपके रूटीन में कौन से ऐसे फूड ऑप्शंस प्रेफर करते हो इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर जो आप ऑडियंस को भी बताना चाहोगे? Yes, so I'm a foodie. मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ. मैं even though I try to you know avoid eating at nights, but बहुत भूख लग जाती है. Guys, fasting सन्मति के लिए नहीं. नहीं है, मुझे बहुत भूख लगती है. तो मैंने क्या किया ना कि मैंने ऐसे फूड्स फाइंड आउट किए हैं जो फिलिंग है बट दे आर वेरी लेस इन कैलोरीज. सो वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग यू नो फूड इज द शीराटाकी नूडल. ओके. So not many people know कि you know this is a noodle which taste very similar to आपका हाका या मतलब not exactly. कितने का आता है पैकेट? आता है 200-250 रुपए का. और उसमें कितने नूडल्स बन जाते हैं? एक वन सर्विंग? वन सर्विंग नहीं, 2 लोग 3 लोग खा सकते हैं. अच्छा. और उसमें फिर आप यू नो कैप्सिकम और आपके वेजिटेबल्स डालो. जैसे ही आप हाका नूडल्स बनाते हो उसको बनाओ. लेकिन यू नो हाउ मेनी कैलोरीज दैट हैज़? 100? ओनली 9 कैलोरीज. ओह. So you can actually have a meal which is less than, ठीक है आप अगर कुछ you know उसके अंदर वेजिटेबल्स भी डालते तो भी 100-150 not more than 50 to 100 calories. And imagine, so it's you know losing weight is a simple math. You know it's like your bank account. अगर आपको हाँ कैलोरी डेफिसिट में जाना है तो अगर आप you know ऐसे इंटरेस्टिंग फूड्स, एक शीराटाकी राइस भी आता है, उसमें थोड़े कैलोरीज ज़्यादा है बट अगेन इट्स लेस देन 100. यू नो एक मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जैसे आप नोट गिनते हो वैसे आप कैलोरीज भी फूड में काउंट कर सकते हो. मतलब अगर 10 रुपये है तो यू नो 10 रुपये मतलब आप एक खीरा खाओ, यू नो अ क्यूकम्बर, उसमें 10 कैलोरीज रहती है. अगर आपके पास 20 रुपये है तो आप टमाटर खाओ, यू नो उसमें 20 कैलोरी रहती है. अगर आपके पास 50 रुपये है तो यू नो आप एक रोटी खा सकते हो या 2 रोटी खा सकते हो. 500 रुपये तो चिप्स, 500 रुपये तो गुलाब जामुन. तो लोगों को पता नहीं है एक गुलाब जामुन में 500 कैलोरीज रहती है. मतलब अगर आपने 2 गुलाब जामुन खा लिए तो आपका ऑलमोस्ट 1/5. अभी तो शादी का सीजन आ रहा है, अब तो मतलब ऑलमोस्ट आपका पूरा दिन का कैलोरी इनटेक हो जाता है. तो लोग बोलते हैं हाँ वो मेरी मॉम हमेशा यार एक गुलाब जामुन तो खाना है तेरे लिए बनाया. तो इट इज़ यही है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि कितनी कैलोरीज है, लाइक राइस में 100 कैलोरी है, तो अगर इसलिए यू नो इफ़ यू कैन एक्चुअली काउंट यू नो फूड एज हाउ यू स्पेंड मनी. एंड सबसे बेस्ट पानी, 0 कैलोरीज. आपको जितना पानी पीना है आप पियो. तो मैंने एक वो आमिर खान का वीडियो भी देखा था, वो बोला कि यू नो इन माय वेट लॉस जर्नी, जब वो यू नो मूवी कर रहा था तो वो जब मुझे भूख लगती है सबसे पहले मैं पानी पीता हूँ. अगर फिर कंट्रोल नहीं होता है तो आई थिंक यू कैन यूज़ यू नो दीज काइंड ऑफ फूड्स.
बट यस अभी चिप्स भी मैं तो नूडल्स के अलावा और क्या खाते हो? लाइक आपने सिर्फ नूडल्स के बारे में नहीं, बताया। नूडल्स है, फिर राइस है, जैसे मैंने बोला आप एक सैलड बोल बना लो, सोया इज सो हाई इन प्रोटीन्स। और अभी तो बेस्ट पार्ट क्या है ना, पहले सिर्फ वे प्रोटीन हुआ करता था प्रोटीन के लिए, अब वे प्रोटीन जो थोड़े लैक्टोस इंटॉलरेंट है थोड़ा हैवी भी होता है डाइजेस्ट Plant करने protein को, आ गया है। प्लांट प्रोटीन आ गया। और अभी इनफैक्ट देयर आर सो मेनी ब्रांड्स अभी एक प्रोविलैक करके ब्रांड है, Yeah. दे They have आर 25 grams दे आर of वेरी protein. गुड पार्टनर्स टू ग्रो फिटर। हमने हमारे ऐप पे लोगों को 5 दिन फ्री दूध दिया था। बहुत मतलब सब गौ माता बहुत खुश हुई। मेरे फ्रेंड्स की सब मम्मियाँ बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उन्होंने एक नया प्रोटीन मिल्क लॉन्च किया है 25 grams. एग्जैक्टली 25 grams एंड वी गिव 5 days फ्री एज सब्सक्रिप्शन and it went, I mean it sold like hot fire on our app. So I think इतने सारे substitutes है and people don't realize that protein is the key ingredient for bodybuilding. बट आपने बताया नहीं आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, लंच में क्या खाते हो, डिनर में? So पहली बात आपका क्या ब्लूप्रिंट है न्यूट्रिशन का? firstly I never I'm not a breakfast person. Okay. आप सीधा लंच करते हो? मैं सिर्फ कॉफ़ी पीता हूँ सुबह क्योंकि एज आई टोल्ड यू मुझे बहुत भूख लगती है तो मैंने अगर ब्रेकफास्ट कर लिया तो मैं सब कुछ खा लूँगा। बट आई थिंक यू कैन बेसिकली you can have your black coffee if you're going to a workout in the morning. I think that's a very good dose of caffeine. फिर आप लंच करते हो? फिर हम लंच करते हैं, जैसे आई टोल्ड यू आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, तो मैं रोटी सब्जी। इसलिए भी आपने ग्रीन पहना है? नहीं तो इंटरेस्टिंगली अभी टोफू बहुत लोगों को नहीं पता है। अभी पनीर का प्रॉब्लम क्या है कि पनीर थोड़ा महंगा है, 200 ग्राम पनीर 120-130 रुपए का आता है, पर टोफू उसके हाफ कॉस्ट में, हाँ 65-70 60 रुपीज़ में आपको टोफू आता है। थोड़ा टेस्ट में थोड़ा अलग है, 19-20 है। लेकिन अभी मैंने जस्ट 2 दिन पहले राइस और टोफू टिक्का मसाला बनाया था and it tasted amazing. So I think people should now experiment. सोया में भी आप मैंने सोया की कढ़ी बनाई थी, तो सोया को जैसे आप वो कढ़ी और ये बनाते हैं पकोड़े, दैट्स राइट। तो हमने सोया के पकोड़े बनाए थे। सो नाउ आपको ना ये सब एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जिसमें आप न्यूट्रिशियस और टेस्टी दोनों आपको फूड मिल सकते हैं। एंड आई थिंक अडॉप्टिंग a vegetarian lifestyle is preferable, क्योंकि पहली बात तो आपका फूड बहुत कलरफुल हो जाता है और दूसरी बात वो थोड़ा उससे लाइफ कलरफुल हो जाती है। भी वैसे तो लोग बोलते हैं कि दारू भी वेजिटेरियन है क्योंकि वो वीट से बनती है और बार्ले से बनती है, बट द प्रॉब्लम विथ इट हैज़ अ लॉट ऑफ कैलोरीज। बट जितना आपने मेंशन किया, आई थिंक आप चपाती के ऊपर राइस प्रेफर करते हैं? सो आई एम अ राइस पर्सन। मुझे लगता है मैं भी थोड़ा साउथ इंडियन हूँ और शाम को अगर मुझे दाल चावल मिल जाए, स्पेशली मेरे पापा बहुत अमेजिंग दाल बनाते हैं, वो सांबर वाली। रोहित शर्मा का भी फेमस दाल चावल ही है। वो बोलता है कि यार आप कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड में, वो एक ऐसी चीज़ है जो मिल ही जाएगी। मुझे लगता है कि दाल चावल इज अ स्टेपल फूड ऑफ इंडिया एंड वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। लोगों को लगता है कि यार हमने राइस अवॉइड करना चाहिए, अगेन दैट्स अ वेरी बिग मिथ। राइस इज आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेरा एक फार्मूला है जो मैं जहाँ भी जाता हूँ, आई वॉज नाउ ऑन TEDx एज वेल, तो ये फार्मूला मैंने वहाँ पे काफ़ी पब्लिकली बोला था 4-2 का 1। सो द प्रॉब्लम इज़ लोगों को पता ही नहीं है क्या, एक तो पहले लोगों को पता नहीं है कैलोरीज कितनी लेनी है, उसके बाद लोगों को पता ही नहीं है कि यार मेरे वेट के हिसाब से मुझे कितना कार्ब्स, मुझे कितना प्रोटीन और कितना फैट लेना है। तो एकदम सिंपल फार्मूला है 4-2 का 1। लेट्स से आपका वेट है 80 kgs, सो 4 grams of carbohydrates multiplied by your weight, so मुझे 320 ग्राम या 320 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स की लेनी है। ठीक है, सॉरी ग्राम्स। सो 320 ग्राम मुझे कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, फिर 80 into 2 160 ग्राम मुझे प्रोटीन लेना है, और 80 into 1 80 ग्राम्स ऑफ फैट लेना है। तो बेसिकली अगर मैंने इतना इनटेक कर लिया, सो मेरा दिन का पूरा डाइट हो। जैसे कि आपने मेंशन किया कि यू डोंट ड्रिंक, यू डोंट स्मोक, बट राइट नाउ व्हाट इज ट्रेंडिंग इज वेपिंग, राइट?
तो डू यू थिंक कि वेपिंग बेटर ऑप्शन है देन स्मोकिंग? No, it is a very dangerous trend. Why? Here, I think because problem is in smoking, at least you are smoking 2 times, 3 times, 5 times a day. But vaping, you are continuously vaping, and people don't understand that it is liquid nicotine, and it has a higher dosage of nicotine than cigarettes. And the problem is that at very early age, people have started vaping. आप इनफैक्ट अभी cool. कूल है और लोगों को लगता है कि यार ये तो हार्मलेस है, उसमें उन्होंने इतने फ्लेवर्स ऐड कर दिए हैं. इनफैक्ट बहुत कंट्रीज में, सो अभी मैं सिंगापुर में था, वेपिंग इज बैंड. इनफैक्ट देयर इज अ वेरी बिग पेनल्टी ऑन वेपिंग. सो देयर आर मेनी कंट्रीज दैट आर बैंड. आई थिंक इंडिया में भी पब्लिकली तो आई थिंक इट्स नॉट अलाउड. सो एंड वेरी अर्ली एज मैंने स्कूल किड्स देखे हैं जो अभी वेपिंग कर रहे हैं, एंड उसका सबसे बड़ा डिज़ास्टर है यू बेसिकली गेट पॉपकॉर्न लंग्स. तो आपके लंग्स में होल्स हो जाते हैं, एंड अगर आपके बलून्स में होल हो गए तो वो हवा तो निकल ही जाएगी. सिर्फ लंग्स की नहीं, आपकी भी. सो आई थिंक इससे अच्छा है कि आप यार प्रोटीन पियो या सोयाबीन खाओ, कुछ हेल्दी पियो यार, कोकोनट वाटर पियो. इतना हम our country is so rich in so many foods. I think it's high time that we adopt an active and healthy lifestyle. So to end up like our discussion, what's one thing that you tell the founders? Because in the end, founders का ही हेल्थ कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है. सो इफ़ यू वांट टू समराइज एंड टेल 3 थिंग्स टू द फाउंडर्स हु आर बिल्डिंग देयर बिजनेस इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, कि आप ऐसी 2 या 3 चीज़ें क्या आपको करनी है एज अ फाउंडर जिससे आप अपनी फिटनेस और हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो. या सो आई थिंक बीइंग अ फाउंडर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल जॉब. राइट. क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इट्स अ मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ यार, आप जॉब में हो तो आपकी ऐसी लाइन स्ट्रेट रहती है, लेकिन व्हेन यू आर रनिंग अ स्टार्टअप ऐसा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर जाएगा. इट्स लाइक योर हार्ट रेट ऊपर नीचे. सो आई थिंक पहली बात तो नॉट जस्ट फिजिकली बट आई थिंक मेंटली ऑल्सो. आई थिंक योगा इज़ एन अमेजिंग फॉर्म. मेरे बहुत सारे फाउंडर फ्रेंड्स हैं मेरे जो सुबह उठ के योगा करते हैं, बिकॉज मेंटल वेल बींग इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल वेल बींग. सो आई थिंक दैट इज़ नंबर 1. मैं भी थोड़ा मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया है. सेकेंडली इज़ एज आई टोल्ड यू कि ट्राई एंड हैव एज मच एज प्रोटीन्स एज पॉसिबल, बिकॉज इंडिया एज अ कंट्री even in vegetarian food there is a protein deficiency. Correct. लेकिन वो भी एक मिथ है. इनफैक्ट बहुत लोगों को लगता है कि क्रिएटिन भी जो है वो हम लेते हैं तो उससे हमारी किडनी में स्टोन्स हो जाएंगे. दारू पीने से भाई तुम्हारा लिवर तो वधिया रहता है. मतलब एनी फॉर्म ऑफ लिकर इज बेसिकली गोइंग टू किल योर लिवर. ऐसा कोई अल्कोहल नहीं है विच इज गोइंग टू बी, वो बोलते हैं रेड वाइन इज वेरी इज एन एंटी ऑक्सीडेंट. आई थिंक दैट्स ऑल. So I think that you should have proteins. Peanut butter आजकल काफ़ी ट्रेंड में. There are so many as I told you ready to drink proteins आ गए. Guys, ग्रोफिटर पे पीनट बटर फ्री में मिलेगा, 10,000 स्टेप करने पड़ेंगे. Yes, that's right. और एप्पल एयरपॉड्स भी मिलते हैं. तो आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, डेली स्टेप्स लेने हैं और आपको रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे. एंड so, आपने बताया मेडिटेशन, देन आपने बोला प्रोटीन इंटेक पे आपको ध्यान देना है. एंड थर्ड ओवरऑल ट्राई एंड अवॉइड अ लॉट ऑफ ऑयली फूड, बिकॉज द प्रॉब्लम इज फाउंडर्स आर ट्रैवलिंग अ लॉट. सो आई थिंक दैट दाल चावल बेस्ट है. बेस्ट है दाल चावल, क्योंकि दाल चावल में बोथ कार्ब्स, आप घी डालो उसमें तो, क्योंकि आप अगर कीटो डाइट देखोगे तो कीटो में भी बेसिकली इट्स फैट एंड कार्ब्स. वो दोनों का आपको इनफैक्ट कार्ब्स पूरा कम हो जाता है तो फैट्स एंड प्रोटीन्स रहता है. सो आई थिंक यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस. देख वो 6 पैक तो क्या है ना, वो बॉलीवुड का एक ट्रेंड है. आई डोंट थिंक कि जस्ट हैविंग 6 पैक्स इज गोइंग टू मेक यू फिट. आई थिंक इफ़ यू आर एबल टू टेक, मतलब मैंने तो अभी ये एक नया टेस्ट देखा है कि अगर आप 7 माला पैदल चल के ऊपर नीचे आ सकते हो तो आई थिंक यू कैन कॉल योर सेल्फ फिट. या आप नीचे ऊपर जापानीज़ में
you know, most of the people that, you know, वो जो blue zone हम बोलते हैं, you know, more than they live for more than 100 years. One of the key reasons is they basically, you know, sit down and eat food. वो कुछ भी काम करना हो, नीचे बैठते उठते हैं, नीचे बैठते उठते हैं. सो बेसिकली अभी हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि हम बैठे ही रहते हैं. हम बैठे ही रहते हैं और हम नीचे बैठना हमको लगता है, जबकि हमारा इंडियन ट्रेडिशन. इफ़ यू गो टू इनफैक्ट आप जापानीज रेस्टोरेंट में जाओ, यू नो, आई हैव गॉन टू कोफुकू, ये वो, दी बेसिकली हैव अ सिटिंग वे हैव टू सिट डाउन एंड ईट. उसके लिए हम 1000 रुपये, अब वो बिकॉज वो जापानीज ट्रेंड है और हम पहले घर पे खाते थे तो हमको बहुत ही यू नो एम्बैरेसिंग फील होता था कि नीचे क्यों बैठ के. इनफैक्ट अभी तो एक और ट्रेंड आया है कि अगर आप हाथ से खाना खाते हो तो बेसिकली यू नो यू हैव अ सेंस विथ योर फूड. So that helps you in better digestion. So I think, you know, we have an amazing culture. नीचे बैठो, उठो, खाओ, पियो, ऐश करो. You have to have an active lifestyle. तो वो because they basically get up, you know, almost more times in a day, they are able to live longer. PO means protein shakes, right? That's right. In fact, मैं अभी you know चाइना गया था recently. तो वहाँ पे मैंने एक नई मशीन देखी जिसमें आप वो मैं सोच रहा हूँ, यू नो, मशीन, वेंडिंग मशीन खरीदने का एंड टू इंस्टॉल इन सम जिम्स. उसमें डायरेक्टली प्रोटीन शेक. It's already available. It's already available. Yeah. That's right. Super U is one of the brands who started off putting that and placing that vending machines close to the gyms. Fantastic. तो आई थिंक ऐसे यू नो वेंडिंग मशीन्स अगर आ जाएंगे तो आप वो वेंडिंग मशीन से डायरेक्टली प्रोटीन शेक पियो. That's nice. Thank you so much, Sanmati. I think अब एक rapid fire round बचा है which will be not related completely to what you're building. Done. But हम लोग वो start करते हैं. Are you ready for that? Absolutely. Okay, so let's go for it. पहली चीज़, डोले या छोले? या छोले से डोले बनेंगे बिकॉज प्रोटीन. मतलब छोले काफ़ी हेल्दी होते हैं एक्चुअली. तो छोले खा के डोले बना सकते. नहीं, बट चूज क्या करना. पर छोले को फिर कुलचा मत खाना या भटूरा मत खाना. सिर्फ छोला और फिर डोला. गुलाब जामुन या समोसा? नहीं भाई, दोनों भी. तो एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक यू नो समोसा खाते हैं या एक गुलाब जामुन खाते हैं तो उसमें 500 कैलोरीज होती है. तो आपको वॉक करके समोसा लेने जाना तो उसको बर्न करने के लिए आपको 2 घंटा पैदल चलना पड़ेगा. तो ओके. तो यहाँ पर बॉम्बे में आई थिंक गुरु कृपा के समोसे बहुत बढ़िया है. तो अभी हम तो अंधेरी में बैठे हैं तो यहाँ से पैदल अगर यू नो पैदल आप जाओ, 2 समोसे खाओ, वापस फिर वापस आओ. नहीं फिर और ग्रोफिटर ऐप भी यूज करो तो स्टेप्स के आपको रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे. ओके. अमन गुप्ता या अश्नीर ग्रोवर? अमन बेटर शाक. अमन गुप्ता. Why? ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्योंकि उसने आपको फंड्स दिए इसलिए. तो मैंने वो टीवी पे भी बोला था, यू नो, हिज जर्नी एंड माय जर्नी इज वेरी सिमिलर. ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन ही डिड हिज MBA. आई एम आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट और हमारी वाइब्स बहुत मैच करती है. आई थिंक इज एन अमेजिंग गाय. यू नो, व्हेनेवर आई गो एंड मीट हिम, यू नो, वी मेक वीडियोज, वेरी अप्रोचेबल. Unlike what I've heard about, I've met Ashneer once. बट वो सीधा सेट पे मिले थे आप? नहीं, मैं उनको एक और बार हमने इवेंट में मुझे भी एक जज बुलाया था. तो थोड़ा तो वो भी जज थे, आप भी जज थे? मतलब वो उसको नेक्स्ट उसमें राउंड में जज था. मैं पहले के राउंड में जज था. तो सलमान या सनमती, बिकॉज दोनों ने शादी नहीं करी है अभी. अभी मैं सलमान जैसी बॉडी तो नहीं है मेरी. बिकॉज सलमान को भी आप तो ग्रो फिटर बोल सकते हो ना यूज करने को. यस आई हैव सीन हिम वंस. हमने एक्चुअली उनकी एक मूवी के साथ यू नो टाई अप किया था. पुरानी थी मेरे ख्याल से, वो जिसमें बॉबी देओल और किसी का भाई किसी की जान. हाँ नहीं, एक और कोई मूवी थी, रेस 3. तो तब मैंने ना थोड़े मतलब बहुत सिक्योरिटी थी उसके अराउंड, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया था. बट आई थिंक यू नो बीइंग अ फाउंडर यू नो यू आर सो पैशनेट अबाउट. आपने बताया नहीं सलमान या सनमती? सलमान. तो सलमान जैसी लाइफ नहीं है हमारी. यू नो एक स्टार्टअप में इतना स्ट्रेस रहता है कि यार शादी का आप स्ट्रेस नहीं ले सकते. परफेक्ट. थैंक यू सो मच सनमती फॉर बीइंग हियर. लाइक हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया आज, आपकी स्टोरी से लेकर शार्क टैंक के बाद आप क्या बिल्ड कर रहे हो, कैसे ग्रो करने वाले हो, प्लस योर ओन लाइफस्टाइल, योर ओन हैबिट्स, प्लस कुछ गुलाब जामुन और समोसा. तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे एंड लाइक
We'll see you next time. I think आपकी जर्नी भी काफ़ी सिमिलर है. I think you are also building something great. Fitnastic is an amazing product, and I think you are also pretty fit. And so अभी एक हमको push-up challenge करना पड़ेगा. नहीं of course करेंगे. And उसको viral करना पड़ेगा. और कोई particular referral code that you wanna share it with your audience जिससे उनको एक extra reward points मिले GrowFitter पर. तो आप सिर्फ GrowFitter करके रेफरल कोड डालो. जब भी आप ऐप पे डालोगे तो आपको 50 पॉइंट फ्री मिलेंगे और उसमें आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं. सिर्फ 50 पॉइंट्स में? 50 पॉइंट्स में तो आपको स्मार्ट वॉच, हेडफोन, टी शर्ट, बहुत सारी चीज़ें फ्री मिलेगी. और अभी तो हमारे पास इतने ब्रांड्स आ गए. वी हैव पार्टनर्ड विद मोर देन 200+ ब्रांड्स. सो आई थिंक अभी डोंट बर्न योर कैश, burn your calories and get rewarded on GrowFitter. That's amazing. Thank you so much, Sanmati. Thank you so much for your time.